بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں پرائم منسٹر صاحب کی کاوشوں سے بیرونی سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ ہوا اور مہنگائی کی شرح میں کتنی کمی ہوئی، ڈھیل کی متلاشی، پی ٹی آئی ڈیل کا پروپیگنڈا کرنے لگی، امریکی الیکشن کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن ہے آج، حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہے، بھارت کا لاہور کے لیے اسموک کا تحفہ، شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے زیادہ کراس کر گیا۔ اس پر ماہرانہ رائے لینے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، السلام علیکم سر، اور امین حفیظ، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی رہے ہیں الحمدللہ، خوش ہیں؟ شکر ہے۔ آپ کا پروگرام کیسا رہا؟ میں کہتا ہوں جی آپ بتائیے، عوام بتا رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھارت کا تحفہ، بھارت کا سموک کا، کریں گے بات سب چیزوں پہ، بالکل ان سب پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن سب سے پہلے ہم رضی دادا ایک اچھی بات سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام کا، اور وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو غیر ملکی دورے کیے ہیں سعودی عرب اور قطر کے، اس کے جو افیکٹ آنا شروع ہوئے ہیں وہ بالکل شہباز سپیڈ کی طرح آنا شروع ہو گئے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا نا یہاں پہ اس میں ڈفرینشیٹ کر دوں، بیرونی سرمایہ کاری جب آتی ہے تو وہ افراط زر ساتھ میں لاتی ہے، بالکل، اور وہ ساتھ افراط زر کا مطلب ہوتا ہے کہ پیسے کی فراہمی زیادہ ہو جاتی ہے، اشیاء اتنی ہی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے جس چیز کی فراہمی زیادہ ہوگی وہ زیادہ خرچ ہوگا، یعنی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس افراط زر کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اشیاء مطلب کہ جو پیسہ آئے اسے آپ ایسی مدات کے اندر خرچ کریں کہ وہ اکانومی کے اندر نہ گھومیں، ٹیکنیکل بات ہے ذرا، معیشت میں گھومنے کی بجائے وہ ایک سائیڈ پہ لگ جائے تاکہ وہ عام لوگوں کی زندگی کو اجیرن نہ کرے۔ بالکل صحیح۔ اب آ جائیے وزیر اعظم صاحب کا جو دو دورے ہیں اوپر نیچے، سعودی عرب اور قطر کا، اچھا سعودی عرب کے دورے کے اندر ان کے وزیر سرمایہ کاری روایت کے خلاف میڈیا پہ آگے کہتے ہیں کہ جی ایم او یو ہم جب پاک سعودیہ انویسٹمنٹ فورم کے اسلام آباد اجلاس کے دوران جو ہم نے کیے تھے وہ 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کے تھے، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، یہاں پہ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بائی دا وے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ سرمایہ کاری کانفرنس کے اندر شریک ہونے گئے تھے، بالکل، اور یہ کوئی پہلا پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے جو وہاں پہ گیا تھا، ایک اور بھی وزیر اعظم صاحب گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت نا، اور انہوں نے جو شاہ سلمان ہیں ان کو منہ پہ کھڑے ہو کے نا ایسے 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 کر کے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، یاد ہے۔ اچھا یہ جو ہے وہ شاہی نارمز کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی کو ایسے انگلی کر کے نا تو انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ ڈپلومیٹک دیکھیں نا جی، ایک لینگویج بھی ہوتی ہے، ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، آپ کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتے کہ کس فورم پہ کیا بات، شور مچانا تو آتا ہے نا، شور مچانا تو آتا ہے نا جی، اس پہ ہم آگے آئیں گے، پہلے اس پہ آپ کی ڈیٹیل رائے لے لیں۔ اب ہوا کیا کہ 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کے کمٹمنٹس پہنچ گئی ہیں سعودی عرب کی طرف، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شہباز شریف صاحب نے کہا آئے تھے ہوئے ہیں تو ایک اور کام بھی کر دے چلیے، ظاہر ہے، کرایہ بچائیے ذرا، تو وہ ساتھ میں ہے قطر، وہاں پہ چلے گئے۔ قطر اس وقت دنیا کے اندر فی کس آمدنی کے حوالے سے سب سے امیر ملک ہے، صحیح، سب سے زیادہ اوورسیز سرمایہ کاری قطر کی ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر پورے محلے انہوں نے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے۔ فرانس کے اندر اور برطانیہ کے اندر سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ انویسٹر کے طور پہ قطری پہچانے جاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہو گیا، اور ان کو ہم نے جا کے کہا قطری آپ کو پتا پاکستان میں پاور ہاؤس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے بہت سارے مطلب مطلب ان کو رضی دادا ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کا بڑا پازیٹیو، ایک تو شوق ہے، دوسرا ان کو بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے، بالکل ماضی میں، جی ماضی میں بھی دیکھیں پاک قطر انویسٹمنٹ کمپنی انہوں نے باقاعدہ بنائی ہوئی ہے۔ اچھا وہ قطر جو ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور قلندر کس کی ملکیت؟ کس کی ہے؟
कतर लुब्रिकेंट के। अच्छा, ये जो हमारी क्रिकेट टीम आप बिल्कुल, लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर जो है उनकी मतलब कतर की रॉयल फैमिली जो है उनकी मलकियत है ना कतर लुब्रिकेंट, सही तो उनकी है। अच्छा, एनी हाउ तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके अंदर, तो उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी डाइवर्सिफाइड है। $3 बिलियन, कल मैंने $2 बिलियन कह दिया था प्रोग्राम जी में, जी जी, तीन लेकिन बिलियन आज करेक्शन करनी है, आज 3 करेक्शन बिलियन। की है बिल्कुल। मेरी और शुमाइला ने कि हाँ वो जी। 2 नहीं $3 बिलियन की उन्होंने कमिटमेंट की है। बिल्कुल। अब हम उन्हें उस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पेश कर पाएं कि जनाब आप ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो अलग बात है। और ये आपको पता है कि कतर इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ती LNG सिर्फ एक मुल्क को दे रहा है, पाकिस्तान, और उसका नाम है पाकिस्तान। बिल्कुल। और ये 15 साल का मुआहदा है जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने साइन किया था, सही। और जिसकी बुनियाद पे उन्हें जेल डाला गया। और वो कहते रहे कि जो मैंने अच्छे काम एग्रीमेंट पे किया जेल डाल दिया। अच्छे काम पे डाला जाता है, बुरे काम पे तो नहीं डालता। अच्छा, इसका इफेक्ट जो है ना महंगाई की सतह अच्छा, जो है, महंगाई वाला, हाँ महंगाई वाला बिल्कुल। पहलू दूसरा है। देखिए ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर पिछला कॉटन का सीजन खत्म होता है और अगला शुरू होता है। आपके यहाँ फुट्टी की अराइवल बदीन और ठट्ठा में शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, वो जो समंदर के बिल्कुल साथ हमारे 2 अजला लगते हैं ना, हमारे प्यारे सिंध के, हाँ सिंध के। उसमें अराइवल शुरू। अब ऐसे मौसम चलेगा, और ये जो फुटी है जो कि हमारी, जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं, उसकी अराइवल होगी, और ये हमारे GDP के ग्रोथ रेट को डिटरमिन करती है। अगर पिछले साल की निस्बत 1 मिलियन बेल हमारी ज्यादा हो जाए, हमारा 1% GDP ग्रोथ बढ़ जाता है। ठीक है, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, जब इसकी फसल आती है, हमारे तमाम बैंकिंग सेक्टर ने, फाइनेंशियल सेक्टर ने इसके हवाले से प्लानिंग कर रखी होती है। तो बैंक जो है वो अपने दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि बहुत मतलब हजार अरब रुपए आड़तियों को कर्ज मिलता है, वो किसान से फुटी खरीदते हैं, फुटी खरीद के जिनिंग फैक्ट्रियों को देते हैं, जिनिंग फैक्ट्रियां उनको पैसे वापस करती मतलब हैं। पूरा एक सर्कल चलता है। अरब रुपए अच्छा का। अमीन हफीज, ये इसका इफेक्ट जो है ना, ये महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पे आई है इस सरमायाकारी से, और इसके रिजल्ट हमें स्टॉक मार्केट में भी नज़र आ रहे हैं कि अब सरमायाकार हम पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। इस बाकी जो सूबों की गवर्नमेंट्स हैं ना, वो अपनी आवाम को इसका रिलीफ दे रही हैं। KPK के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अपनी आवाम को कोई रिलीफ देंगे या बस वो सिर्फ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप शोर हमारे शराबा लड़ाई? बयानात देखें, आप ये देखें कि हम मरकज के खिलाफ कितने बयान दे रहे हैं, उससे उनको मौलाना क्या फायदा? फजलुर रहमान के खिलाफ हम कितने बयान दे रहे हैं। वो अपनी हुकूमत को ये कहते हैं कि जो मुजाहरा करने उधर गए थे उनके सरकारी मुलाजम, ठीक है ना, D चौक में, हाँ जी। जब वापस आए हैं, देखें हम उनको कितने फूलों के हार पहनाए हैं, हमने उनको 1 महीने का इजाफी बोनस दिया है, वो ये कहते हैं। तो आवाम कहाँ जाएगी KPK की? अवाम का तो लेना देना नहीं है, वो तो उनको पता है कि बानी ने उनको उठाया और इतना बरावदा दे दिया। अब तो वो बानी को खुश करने के चक्कर में ही रहते हैं हर वक्त ये नहीं सोचते कि मुझे अल्लाह ताला ने इतने बड़े मनसब पर फाइज किया है, बिल्कुल। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आवाम के लिए काम करूं, इधर उधर देखूं कि बलूचिस्तान दूसरे में, सूबों सिंध में में, देखें, पंजाब पंजाब में में, क्या सिंध, काम हो रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैं जो तरक्की की रेस है उसमें अपने सूबे को लेके आगे चलूं। उनको इसमें नहीं है, उनको ये है कि मैं किस तरह वफाक को कमजोर करूं, वफाक के खिलाफ बयानबाजी करूं। गैर मुल्की सरमायाकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो अपनी स्पीड के साथ खींच के ला रहे हैं। देखिए MOU जो 27 MOU साइन हुए, वो 34 तक उनकी तादाद चलेगी। ऐसा ही है, 2 34 तक मुल्कों का चलेगी। दौरा, कल भी हमने सऊदी बात अरब की और थी। कतर का, हाय 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 हाय। पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि मतलब है कि सरमाया की, गैर मुल्की सरमाए की ऐसी लहर बहर आनी है कि वक्ती तौर पे भी लोग समझ रहे हैं कि महंगाई क्यों नहीं खत्म हुई। ये अदादो शुमार में तो कम हो गई है, अब जब इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आबशार का पानी नहीं नीचे आता, वो ऐसे फिर वो सराब करता है जमीन को, फिर उस पे हरियाली आती है, फिर पौधे उगते हैं, दरख्त उगते हैं, फल लगते हैं। अच्छा, ये 24 टाइम लगता है साल थोड़ा। 24 इस महंगाई का जो लोग कह रहे हैं ना आज महंगाई है, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर की और फेडरल गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं, बिल्कुल, ये इसके असरात आपको भी नजर आएंगे, साल ठहर जाएं। मैं इसमें एक नहीं और भी मिसाल नहीं, देना दादा चाहूँ। 24 साल बाद ये खसारा जो है वो खत्म हुआ है। जी, करंट अकाउंट का खसारा जो है, तिजारती खसारा तो और होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा 24 साल के बाद मुस्बत में गया, वरना
करंट अकाउंट ऐसे का था। जो खसारा होता है वो खत्म हो गया, अब हम सरप्लस में चले गए, सही। पॉजिटिव में चले गए। लेकिन एक बात मैं आपसे यार शिकवा करूंगा दोनों से, भाई आपने खामखा रगड़ा निकाल दिया किसका? कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो केपीके की कुछ नहीं कर रही। उन्होंने 3 करोड़ रुपए का चेक दिया है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन Very को। funny। यार आप इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं? अपनी वहां आवाम को पे क्या नहीं, दिया है? उन्होंने तो अपनी पीआईए भी आवाम लेने को का क्या कह वाले दिया कहाँ है। जाएं? मतलब पीआईए ना वो खरीद सकते हैं, हाँ। ना उनके पास सरमाया है, ना वो उसको चला सकते हैं। नहीं। इतना बड़ा नेटवर्क है, वो कहते हैं जी मैं बिड में शामिल नहीं हुआ था, मुझे शामिल कर लें तो मैं 10 अरब से ज्यादा देने को तैयार हूँ। और भाई वो 85 अरब की तो मिनिमम बोली स्टार्ट हो रही है, आप 10 अरब से ज्यादा 15-20 अरब दे के कहते हो मैं ले लूं। मतलब जिसको कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग। मैं- रजील आगा, आपको- यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, क्या 10 अरब भी पाकिस्तान के साथ मजाक नहीं था? मैं कह रहा हूँ 85 अरब भी मजाक है। मजाक, exactly, देखिए मैं आपको एक बात एसेट्स देखें पीआईए के, रेलवे ने निजकारी अपनी जो जिसको कहते हैं ना कि ट्रेनें कमर्शलाइज, उनको कहा कि बुकिंग टिकटें निजी शोबे के हवाले कर। तो अब कोई बंदा आगे कहे कि जनाब मुझे तो पूरी लाहौर से लेके कराची तक जो ट्रेन चलती है, ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस, तेजगाम, अवाम एक्सप्रेस, मुझे 2 करोड़ रुपए में दे दें। मजाक क्या है, मजाक? टोटली सर मजाक है। मैं और कितना आपसे नाम एक बदनाम। बात अर्ज जी। करूं, 5 अरब से जायद उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाँ, ठीक है। सही। 777 बोइंग 777 के तैयारे उसके पास हाफ दर्जन के करीब ऑपरेशनल हैं। बिल्कुल आपका कराची और टोरंटो का रूट ही नहीं मान, बिल्कुल। अगर सही वो बात है। रेगुलरली ऑपरेट हो रहा हो बिल्कुल डायरेक्ट ठीक फ्लाइट है। यार 5 अरब रुपया कमाने वाली एंटिटी जो है उसका रेट जो है वो 400-450 अरब रुपया बनता है। क्योंकि देखिए जो उसके लॉसेस हैं, जो उसके लोन्स हैं, वो तो सरकार ने पिक कर लेने हैं बिल्कुल। ना, ठीक है ना। आपको तो क्लीन मिलनी है ना, क्लीन सीट मिलनी है, बिल्कुल सही। ना आपको एम्प्लॉयज मिलने हैं जिनके ऊपर आप कहें कि जनाब ये सिफारिश की बुनियाद पे भर्ती हो चुके हैं ये लोग, ठीक है ना जी। ना आपको नाअहल किस्म की इंतजामिया मिलनी है, आपने अपनी इंतजामिया लानी है, एक क्लीन स्लेट मिल रही है। और आप कह रहे हैं कि जनाब 10 अरब रुपए के भी प्लॉट ले लें। दिस इज जोक यार। वैसे This ये is बहुत joke। बड़ा जोक था और इस पे काफी चैनल्स ने प्रोग्राम देखिए, भी मैं- किए हैं मैं- कि आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप वहां पे चले गए और आप ये देखिए, कह रहे हैं कि इसमें इसमें रिटर्न ना में एक प्लॉट बात मैं एक्सचेंज कर कर दूं, लें। पिछली दफा इसी हुकूमत ने एक मंसूबा पेश किया था। उस मंसूबे के तहत 2 कंपनियां बनाई जानी थी, जिसके एक कंपनी में सारे एम्प्लॉयज और लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती, उसे हुकूमत ओन कर लेती। दूसरे एविएशन के ऑपरेशन और रूट्स ट्रांसफर करके आप उसको पेश कर देते प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल तौर पे। वही फार्मूला जो है वो मौसर साबित होगा। और इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि पीआईए की बोली 10 अरब आई है और एक ही कंपनी ने हिस्सा इसमें लिया है, participate किया है, जी। ये मैं आपको बताऊं जो बाकी कंपनियों ने हिस्सा नहीं लिया, जो बाकायदा ऑक्शन का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं हुआ, उसकी अभी कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पार्टियों के जो पीआईए में बोली देने की ख्वाहिशमंद थी। मुझे जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, आपका तो शोभा रहा है, आप खबर करते रहे। उसमें बकायदा उनके जो हदिशात हैं उनको नोट किया गया है, उनको दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर लेवल पे चीज़ें, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब मसरूफ़ थे सऊदी अरब और कतर में, अब वो वापस आ चुके हैं, तो अब उनके जो हदिशात हैं वो दूर किए जा रहे हैं पॉलिसियों के तसलसल के हवाले से। अब जो चीज़ें फाइनल होंगी उसके बाद जो पीआईए को बाहर ओपन किया जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये 10 अरब तो पीनट है, बोली आएगी बड़ी ठीक ठाक आएगी। बिल्कुल सही। और अच्छा, ये बातों का सिलसिला हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, मजबूरी है, हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर।
वेलकम बैक जी। हम बातों का सिलसिला वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे हमारी किसी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। अच्छा, और क्या, एविएटर मैं भी हूँ, एविएशन से ताल्लुक आपका भी रहा है, रिपोर्टिंग आप भी करते रहे हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा इधर भी है, इन्फॉर्मेशन तो है ना ओवरऑल। और वैसे भी पाकिस्तान की देखिए, मतलब इतना बड़ा एसेट है। 2016 के अंदर एक एस्टीमेट लगाया गया कि अहले पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का जो एविएशन का टोटल वॉल्यूम है वो 30 बिलियन प्लस है। यानी 30 बिलियन डॉलर के हमारे लोग साल में सफ़र करते हैं, टिकट खरीदते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर इसमें से आप 20% भी बचा लें तो आपका सारे जो डेफिसिट है ना वो ज़ीरो होते हैं। इसका मतलब है आपको स्ट्रॉन्ग एविएशन चाहिए। सही, आपको 8 से 10 एयरलाइन चाहिए, 10-10, 15-15 जहाज़ों वाली, ठीक है। या आपको एक बड़ी एयरलाइन चाहिए 50 प्लस जहाज़ों वाली, और बाकी 10 से 15 जहाज़ों वाली चाहिए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक एयरलाइन 3 तैयारे लेके बैठ जाती है, अगले 10 साल 3 ही रहते हैं। सही बात है, ठीक है ना जी। तो उसका बेहतरीन हल है कि पीआईए को हम कमर्शियल बुनियादों के ऊपर ऑपरेट करें, उसके अंदर सिफारशी भर्तियों को रोकें, और उसके बरअक्स जो मतलब वो जो ईदी का दायरा बनाया हुआ है ना, हाँ। उसको भी दे दिया, उसको भी नवाज दिया, उसको भी दे कर दिया। माजी में जो होता रहा है, मतलब उतने जहाज नहीं जितने पायलट हैं। मतलब रिक्रूटमेंट देख लें, उनकी एस्टेब्लिशमेंट निकाल के देख लें, मतलब ऐसे ऐसे पॉलिटिकल Overall फैसले staff, माजी में हुए overall हैं। staff में जो है मतलब ना, वो अगर वो सारी चीजें अगर दुरुस्त कर ली जाएं तो आप देखें जो ये जो मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को उसी तनख्वाह के ऊपर बगैर काम के कंसल्टेंट और एडवाइजर के तौर पे भर्ती कर लिया जाता है ना, ये ज्यादती अदारों है। को डबोने का बायस ये बनती है। सही आप पीआईए में से भी इस तरह के एलिमेंट निकाल दीजिए कि बंदा जो था वो 4 लाख की तनख्वाह के ऊपर रिटायर हुआ है, 4 लाख में ही उसे ताहयात आपने री एम्प्लॉय कर लिया है, और उस 4 लाख के अलावा नहीं, ऐसे बहुत सारे जो इंतजामी मामलात हैं वो दुरुस्त करने की जरूरत है। बड़े बड़े फैसले ठीक है, किए जा ठीक है, सकते ठीक है, हैं, बिल्कुल। अदारे ठीक होंगे। और मैं तो फिर वो मिसाल देता हूँ रेलवे की। रेलवे ने तजर्बा किया जब वो समझ रही थी कि मुझसे ट्रेन नहीं चल रही, मेरे मुलाजम जो है करप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने एक ट्रेन को निकाल के उसकी जो टिकटों की फरोख्त है वो निजी शोबे को दी। ऑपरेशन रेलवे इंतजामिया ने अपने हाथ में रखा, ट्रेन की कमर्शलाइजेशन उसको निजी शोबे को दे दी, आउटसोर्स कर दिया। अब निजी शोबे ने सिर्फ जिसका कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेशन रेलवे के पास है, फिर नोट करें, ऑपरेशन रेलवे के पास है, निजी शोबे ने सिर्फ टिकट दी है, टिकट ली है, मुसाफिरों को दौरान सफर सहूलत दी है। हर ठेकेदार ने उसमें रेलवे को जो बोली उससे ज्यादा पैसे भी दिए, खुद भी कमाया, मुलाजमीन को भी पैसे दिए। अब एक नहीं, इस वक्त 28 ट्रेनें निजी शोबे के तावन से चलाई जा रही हैं और सारे ठेकेदार खुश हैं। अच्छा, और रेलवे भी खुश है। तो इसी तरह अगर हम पीआईए को भी कमर्शियल बुनियादों पे चलाएं तो आप इसका असर देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान को भी पैसा मिलेगा, सही, खसारा भी खत्म होगा। और जो इजाफी एक बात ही मुझे समझ नहीं आती, अगर ये एक्सपेंड करता है तो शुमाइला तो वापस जहाज पे चली जाएगी, पायलट है ना? नहीं, मैं यहाँ पे ही नहीं, रहूंगी, ये मैं जहाज आप से लोगों का चले साथ जाइए छोड़ के इसको कहीं भी। नहीं जाने वाली। मेरा लेकिन ख्याल है अब कि इतनी मेरा बड़ी ख्याल- बहस है अमीन हफीज, इतनी बड़ी बहस है, इसके लिए एक अलग प्रोग्राम भी रखें ना तो शायद रखेंगे। हमें कम पड़ जाए। मेरा ख्याल है मुईशत के बाद हम थोड़ी सियासत की बात भी कर लें। सियासत की बात। सियासत की बात में एक पार्टी जो है वो दादा डील की रट लगाए हुए, पता नहीं कौन सी उनकी डील हो गई है, कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। कोई बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद में एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, अच्छा। नूर मुकद्दम वाला। जी बिल्कुल, मेरे नूर भाई मुकद्दम केस अमीन हुआ था। हफीज को याद होगा। हाँ जी, वो एक साइको बंदा था। उसने वो बहुत ही मतलब कि बेरहमाना तरीके से जान ली थी उस बच्ची की। बिल्कुल नूर मुकद्दम उसका नाम था। वो मुकदमा चला सही, और इसमें उसको मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है वो दी गई। अब वो जेल में। बिल्कुल अच्छा, चूंकि वो उसका ख्याल है कि वो अमेरिकन नेशनल है, तो अमेरिका की हुकूमत को उसको छुड़वाने के लिए मैदान में आना चाहिए। अच्छा, तो उसने अपनी हुकूमत को, जहाँ का वो नेशनल है, जहाँ की उसने शहरियत ले ली हुई ठीक है, है। उसको कोशिश की उसने या उसके वालिदैन ने। तो अमेरिका के कुछ सफारती हुकाम जो थे, वो चूंकि अडयाला में कैद है वो कातल,
अब हम कातिल कह सकते नूर हैं। मुकद्दम का जो कातिल है, कह सकते हैं, हाँ। कातिल है। तो वो वहां पे कैद है ना, हाँ जी। तो वो उसे मिलने के लिए आए, तो उधर से खप पै गई, अबू आ गए, अबू आ गए, ये अबू आ बात गए। थी। वो जो कह रहे हैं अमेरिकी वफद जो है वो एडियाला जेल गया है तो उसका पता नहीं कोई डील से ताल्लुक है। वो तो पास से भी नहीं गुजरा। बानी के जो साथी है ना, वो जो ख्वाब देख रहे हैं अच्छा। कि बस आ रहे हैं, हम हार लेके खड़े हैं, और हार भी ऐसे जिसके ऊपर प्लास्टिक का वो कवर लगा वही होता है, अब्बू हैं ताकि जिनकी रट लगाई हुई बानी थी कि जब इनकी हार वजह से हमें पहने, हुकूमत से निकाला गया, ये वही बानी अब्बू जब हैं। वो हार पहने तो कहीं उसकी शलवार कमीज और वेस्ट कोट पर फूलों के निशान ना लग जाएं। हाय हाय। वो इस तरह उम्मीद में बैठे हुए थे कि वो अमेरिका से जहाज आया है, सीधा अडियाला जेल गया है, वाह, और वाह, यूं वाह, बानी को निकाल के वापस लाएंगे, और यूं आय हाय हाय अच्छा, वैसे ये आज- सारे ख्वाब फीती फीती हो अच्छा, गए। अमीना, वैसे आज ऊपर से से- शोभा आपका है, कैसे? आजकल रिश्ते बड़े डिस्कवर हो रहे हैं, यानी कि बानी की बहन कह रही है कि वो कोई ट्रम्प हमारा कोई अब्बा लगा हुआ Oh है, my और उधर God. से वो साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि वो मतलब कि वो कोई फूफी का पुत्र है, मतलब नए नए रिश्ते, खवातीन का शोभा है वैसे भी। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन जो है वो इतना टाइट हुआ है, इतना सख्त नहीं, लेकिन कल कंपटीशन का है। सर्वे नहीं देखा। इलेक्टोरल कॉलेज जो आपको कह रहे हैं कि 538 538 इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें किसी भी सदारती उम्मीदवार के लिए उसको विन करने के लिए उसको जो वोटों की जरूरत है वो 270 वोटों की जरूरत है। अच्छा, अब वहां पर उनको अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, सही। और इधर माशाल्लाह बानी के साथी जो हैं वो समझ रहे हैं कि ट्रम्प साहब आ अच्छा, रहे जो हैं अमेरिका की जो इलेक्शन और है, हम रिहा हो रहे हैं, अमेरिका- और हम सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसे। जा रहे हैं। बस उनको और ख्वाब कोई है। काम नहीं है, उनको ख्वाब कोई है। और काम नहीं है। मतलब उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान, मतलब प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने सबसे पहले कहना जी कहाँ है, या बानी पीटीआई कहाँ नहीं है। नहीं, उसके लिए ना मुझे मौका दिया कि पहले था ना कि आएंगे, हलफ उठाएंगे, 200 अरब डॉलर लाएंगे, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर आप पे लुटाएंगे, पहले ये था वो 2018 और से ओवरसीज पहले। सारे ठीक है। बानी पीटीआई के इस ऊपर वक्त सरमाया ऐसे लुटा देंगे और लुटाएंगे। पाकिस्तान के सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। इस दफा ये है कि ट्रम्प आएंगे, सही कहते हैं कि अनोखा लाडला। हाँ ट्रम्प आएंगे, जहाज से हलफ पैसे उठाएंगे, फेंकेंगे, हलफ उठाएंगे, और डॉलर ही डॉलर फेंकेंगे सारे। जैसे शहर में अब कभी खुशी के मौके पे जहाज फूल फेंकता है, तो इतने डॉलर जहाजों के थ्रू ट्रम्प साहब फेंकेंगे कि बानी जो है भेजा हो जाएगी। हाय हाय। अच्छा, वैसे अगर माँ बच्चे को नहीं ये संभालेगी। जो इंतखाबात हैं अमेरिका के, उसके पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? कुछ हो देखिए सकते हैं? कुछ इफेक्ट नहीं हो सकते, कुछ नहीं होंगे। देखिए इस वक्त दुनिया की तारीख के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, और वो है जमहूरी। पहले होता था जमहूरियत और आमरीत के दरमियान, सही। ठीक है। इस दफा जमहूरियत और पॉपुलरिज्म के दरमियान लड़ाई, और ये पहली दफा इंसानी तारीख में पेश है। एक पॉपुलरिज्म कल्ट है, एक साइड के ऊपर ट्रम्प ने क्रिएट कर लिया है व्हाइट कल्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी खड़ी हुई है जिसके अंदर तमाम लोग शामिल है। आज सुबह के जो सर्वेज आए हैं, अमीन हफीज साहब, मैं आपकी खिदमत में, आज सुबह के जो सर्वे आए हैं वो एकदम स्विंग किया है अच्छा। सेंटीमेंट ने, और कामिला हैरिस की तरफ गए हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, हिलरी क्लिंटन साहिबा जब हारी थी, तो अगर हम जनरल वोटर्स की बात करें तो 3 लाख वोट उन्होंने ट्रंप साहब से ज्यादा लिए थे। वेरी गुड। लेकिन जो वो इलेक्ट्रोल वोट्स जो थे उनके अंदर वो हार गई थी उनसे, ठीक है, कि एक रियासत के इतने वोट हैं, अगर प्रेसिडेंट ने ये रियासत जीत ली है तो वो उतने वोट उसको पड़ गए, तो नंबर ऑफ वोट्स उसके ज्यादा थे, हिलरी के ज्यादा थे, लेकिन जो पॉपुलर वोट्स जो थे वो उनके ज्यादा थे, और यूं ट्रंप साहब जीत गए थे। कामिला इस पे बहुत काम कर रही हैं, और मेरा अब ख्याल ऐसा ये कुछ है, ना हो, लेकिन अब ऐसा कुछ ना हो। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो देखिए, सकता है। किसी भी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क जहां पे के जिसके के पाकिस्तान के अंदर स्टेक हों, जिसके हमारे साथ मामलात हों, सही। और उसके अंदर कोई भी तब्दीली आए, उसका जितना असर पाकिस्तान पे हो सकता है उतना तो होगा। उतना तो बिल्कुल होता उतना है। होगा, लेकिन अगर नॉर्मली कोई है, ये नॉर्मली कहे है। कि ट्रंप आएंगे, हलफ उठाएंगे, उसके बाद फोन फरमाएंगे और को बाहर निकाल कर वजीर आजम बनाएंगे, नहीं ऐ वो मैं कहेंगे नहीं कि ऐसा बानी मुमकिन पीटीआई नहीं है। कहाँ है, ऐसा इसको पहले मुमकिन- बाहर निकालें, बाकी काम और। अच्छा, सियासी जमातें जो भी है ना अमीन हफीज साहब, ये हमेशा मुज़ाकरात से आगे आती हैं। बिल्कुल। मुज़ाकरात ही होते हैं ना, कुछ भी आगे बढ़ना हो, कुछ भी मुशावरत करना, भी होती मुशावरत है। भी होती है, लेकिन ये दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं?
सर बात इस पार्टी सुने, आपने कभी मैट्रिक का इम्तहान दिया है? यकीनन दिया। अभी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट दिया हैं ही इस वक्त। मुझे ये बताइए कि जो बच्चा मैट्रिक में, एफएससी में या एमफिल के इम्तहानात में प्रॉपर तैयारी करके नहीं जाता, वो क्या करता है? इधर उधर इधर देखता है। बड़ी वो जो अच्छी एग्जामिनर मिसाल होता दी है, बहुत है अच्छी। उसके साथ पॉकेट में से पैसे Perfect निकाल के मीरवेज। उसको ऐसे रखता है, उसको ऑफर करता है कि देखो, अगर कि हमारे यहाँ नकल का पंजाब में बहुत बहुत ज्यादा कम सफाया हो चुका है, बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया है, लेकिन जो तैयारी करके नहीं जाता कमरा इम्तहान में, वो दाएं बाएं देखता है, कहीं से बूटी आए, ऐसे मुझे मिल जाए, ऐसे मैं हल करूं, और मैं बल्कि हल भी ना करूं, कोई पीछे अच्छा, से हल एक करके बंदा भेजे, नालायक मैं हो पास ना। हो जाऊं। ऐसे हाल करता पकड़ा जाऊं। अच्छा रजी, तो ख्वाब रजी सोचे साहब, तो। अगर एक बंदा नालायक हो ना, तो जो आसपास के दोस्त अहबाब, जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, वही कम से कम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बता देते हैं। उनके तो आसपास भी लोग वैसे ही हैं। नहीं, वैसे आपस की बात है कि अगर एक बंदा नालायक हो तो इर्द गिर्द के 5-6 लोग नहीं, उससे कुछ- डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, वो उनको कुछ नहीं करने दे रहा होता नहीं ना। तो रजी दादा, मैं कोई एक और बात बताऊं, जो नलायक होता है ना, याद रखें, वो अपने इर्द गिर्द, अपने करीब तरीन, अपने से ज्यादा नलायक रखता है ताकि कोई उसकी जगह न ले ले। और ये चौधरी पानी साहब चौधरी का भी लगे। वही काम है। मेरे- ये अपने से देखो ना, ये इनके भी कई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हैं, आपको पता है। अब मैं वो बात बताऊंगा, फिर बात दूर चली जाएगी। ये जो होता है ना नलायक आदमी, उसको अपने से ज़हीन आदमी नहीं चाहिए होता, पसंद ही नहीं होते। वो उस पर कड़ी निगाह रखता है, और ये फिर सोचता है मैंने इसको कैसे फारग करना है, और उसने किया, और वो फारग करता है, सिर्फ वो एक हाय 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 हाय। बल्ले बल्ले। मैं आज यहाँ पे चिरी उड़ा दे। चिरी नहीं उठानी। मैं देखिए सोच जी, रहा वो था चिरी नहीं होती, मैं आपको बताऊं, वो जो घरे- घरे घरे पे ते जो- चिरी घरे बैठी, पे चिरी। घरे ते चिरी बैठी, चिरी नु रोरा रोरा मारिया, मारिया। चिरी फुर करके उड़ फुर गई। करके। ये समझते हैं कि वो ट्रंप साहब आएंगे, हाय 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 हाय, यूं डयाला जेल से चिरी उड़ेगी, सीधा ईवाने सदर जाएगी, हाँ। और वो भी वेस्ट कोट पहने हुए। तो चिरी ऐसे नहीं चिरी जाती, ऐसे नहीं जाती। चिरी को कायदा, कानून, आइन, अदालत, ये सब फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आज अगर आज के दिन की बात करें रजी दादा, तो आज 2 नवंबर है, सहाफ़ियों का दिन है। उन पे होने वाले जुराइम, जो भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए आज के दिन में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो भी जुराइम हुए, नहीं, सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का जुराइम के आलमी खात्मे, दिन है। एग्जैक्टली आलमी दिन है आज ना, आलमी बिल्कुल। दिन है। उसके खात्मे के बारे में कुछ बोलेंगे, देखिए, कोई अपना मैसेज? मैं मैसेज क्या मैंने देना है, मैं सहाफत का अमल भी हूँ, 3 बिल्कुल दहाइयाँ हो बिल्कुल, गई हैं, आप उस्ताद मोहतरम। और मैं सहाफत पढ़ाता भी हूँ। मेरी राय के अंदर ना सहाफत को इस वक्त रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि ये जो मोबाइल है ना जी, इस मोबाइल के अंदर एक माइक भी आ गया और एक कैमरा भी आ गया, और इसके बाद हर वो शख्स सहाफ़ी बन गया जिसके हाथ में ये मोबाइल है। ठीक है, तो एक दफ़ा बैठना चाहिए। देखिए, 1973 के आइन के अंदर सहाफ़ियों की तारीफ की गई थी। भुट्टो साहब ने जब वो आइन बनवाया था कि ऐसा शख्स, मुत्तफिका आइन पाकिस्तान का, और इस फेडरेशन को, इस वफाक को जोड़ने वाली जो वाहिद दस्तावीज है, ठीक है, वो 1973 का आइन, वो 1973 का आइन है। कुरान पाक के बाद बिल्कुल, जो जिसने इस मुमलकत को इकट्ठा रखा हुआ है, वो 1973 का आइन है। और इस 1973 के आइन के अंदर जो तारीफ लिखी गई है सहाफ़ी की, उसको अर्निंग के हवाले से डिफाइन किया गया है कि ऐसा शख्स जिसका कोई और जरिया रोजगार ना हो सहाफत के अलावा। सही। मैं कह रहा हूँ सहाफत को रीडिफाइन होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हर शख्स सहाफ़ी बना हुआ है। पिछले दिनों अमेरिका के अंदर एक वेबिनार हुआ, मुझे उसका इन्विटेशन आया, मैंने अपने घर से बैठ के उसमें शिरकत की। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि रिपोर्टर और सब एडिटर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अच्छा, अब सिर्फ एडिटर का डेजिग्नेशन बाकी है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो सारा से उसने डिसाइड करना है कि ये फेक है या रियल है, सही, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड नॉलेज। सही, जो कि एडिटर नहीं कर रहे हैं, वो एडिटर ने वो करना एडिटर है। उन्होंने उस लेक्चर के अंदर ये साबित किया कि सिर्फ अब एडिटर जो है वो सहाफ़ी है। तो अब अमलन रजी दादा, आप तो माशाल्लाह रजी दादा भी हैं, दादा। सहाफत के उस्ताद भी हैं, सहाफत में आपने मतलब मास्टर भी किया है, एमफिल भी किया है, मुझे पता है। अब ये देखें
آج ہمارے ہاں جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں عملاً جرنلزم ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ معافی سے سارے ساتھی دوستوں سے معذرت کے ساتھ، موبائل پہ واٹس ایپ پہ خبر چلتی ہے، سارے اس کو بیشتر صحافی دوست اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اسی طرح دفتر فارورڈ کرتے ہیں، آگے ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو پالیسی کے مطابق دیکھ لیتا ہے اور وہ اخبار میں بھی چھپ جاتا ہے، ٹی وی میں بھی آ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے ہاں، ایک سیکنڈ میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں کہ صحافیوں کے خلاف جرائم کا جو دن آج ہم منا رہے ہیں، صحافی ہمارے اتنے پیارے دوست ہیں، اتنی مشکل وقت میں اتنے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، جو گردن سیدھا رکھ کے کسی کی جیب پر نظر رکھے بغیر پوزیٹیو جرنلزم کرتے ہیں، جو دو طرفہ دونوں طرف کی رائے بھی دیتے ہیں، وہ جرنلسٹ جب ان پر مشکلات آتی ہیں پھر اسٹیٹ کو صحافیوں کے تحفظ کی باتوں کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اسٹے ود اس۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں دوبارہ۔ صحافیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے، جس پہ آپ بات کر رہے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج جو 2 نومبر ہے، آج پوری دنیا میں صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس میں میں بات یہ کر رہا تھا کہ صحافی بڑے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، اسپیشلی جو فیلڈ میں ہمارے کیمرہ مین ہیں، رپورٹرز ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ، یہ بہت مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، اور جب ان پر مشکلات آتی ہیں، یہ ان پر تکالیف آتی ہیں، تو اس وقت اسٹیٹ کی ذمہ داری، تشدد کیا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، قتل ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ وہ ابھی پروگرام، پھر آپ مجھے کہیں گے کہ پروگرام کا وقت تیزی سے جا رہا ہے، وہ ڈیٹا بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اتنے زیادہ مشکل حالات میں جب جرنلسٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے یہ تو جرنلسٹ میں بتاؤں نا، پھر وہ بات آگے نکل رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو مختلف ادارے ہیں، سرکاری ادارے کے علاوہ باقی اداروں میں تو کسی کو پینشن بھی نہیں ملتی، بالکل صحیح ہے۔ بیشتر اداروں میں مستقل ملازم بھی نہیں رکھے جاتے، 9 مہینے کی تنخواہ پہ رکھتے ہیں، 9 مہینے کے بعد اگلا۔ یعنی کہ امین حفیظ نے ایک بڑے ادارے میں 40 سال نان سٹاپ جاب کر کے آیا، 40 سال ایک ادارے میں، 2 سال پھر دوسرے ادارے میں۔ جس دن میں نے نوکری چھوڑی، یہ ریکارڈ پہ میں بات کر رہا ہوں، جس دن میں نے نوکری چھوڑی اسی مہینے کی تنخواہ تھی، نہ پروویڈنٹ فنڈ تھا، نہ جی پی فنڈ تھا، نہ کوئی پینشن تھی، نہ مطلب صحافیوں کے اوپر ابھی دیکھیں کتنے ابھی میرے خلاف سارے وہ ابھی پی بی ایس کا جو پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن کے جو بھی انتخابات ہوئے ہیں، ابھی اس کے نئے عہدیدار آئے، ان کو غصہ چڑھ جائے گا کہ امین حفیظ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس وقت جو جرنلسٹ موجود ہیں ان کو تو جو دیہاری دار مزدوروں والا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ذرا حکومت ان کو اتنے لمبے اشتہار، کلر اشتہار اخبارات میں دے رہی ہیں، اور بڑے بڑے بلٹن میں پرائم ٹائم میں ان کو اشتہارات دے رہی ہیں۔ ان پرائیویٹ اداروں کو ذرا ان کی صفحیں درست کریں، انہوں نے کتنے لوگوں کو مستقل رکھا ہوا ہے، کتنے ریٹائر لوگوں کو یہ پینشن دے رہے ہیں، اور کتنے جو فیلڈ رپورٹر ہیں اور ان کو کیا دے رہے ہیں، ان کی تنخواہ کا حال کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ حکومت کو چاہیے کہ جب ان کو اشتہار دیتے ہیں، لمبے نوٹ دیتے ہیں، تو شرائط کہیں رکھ دیں کہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ ورکنگ جرنلسٹ ابھی ٹانگ ٹوٹ جائے نا، وہ بھی حکومت نے لاہور پریس کلب کی مشاورت کے ساتھ جو انشورنس پالیسی رکھی ہے، اور یہ جو صحافیوں کا ایک فنڈ رکھا ہے، اس میں پیسے ملتے ہیں۔ کوئی اخبار، کوئی ٹیلی ویژن نجی شعبے میں ذاتی طور پہ کسی کی ہیلپ تو کر سکتا ہے جرنلسٹ کی، لیکن ایک قاعدے قانون کے تحت جو سب کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ میں نے اس میں تو یہ ناانصافی ہے، انصاف ہونا چاہیے یہاں پہ۔ کرنا چاہوں گا
بھائی جس ادارے میں آپ 40 سال کام کر کے آئے ہیں وہ 5-6 سال میں نے بھی وہاں پہ کام کیا ہے, مجھے یاد ٹھیک ہے, کٹھے سیٹیاں چڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا ہمارا EOBI بھی کٹتا رہا ہے, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے 35 روپے 70 روپے یہ 150 روپیہ 150 روپے. اور لاسٹ ٹائم وہ جو وہ کٹتا تھا, اب میں آپ کو خوشخبری بتاؤں, امین حفیظ کو جب میں وہ ادارہ چھوڑ کے آیا, میں اب نام نہیں لینا چاہتا پھر وہ غصہ کر جائیں گے, نام نہ لیں, اچھا سب جانتے ہیں. جب میں خیر ہے. چھوڑ کے باہر آیا تو میں نے کہا مطلب ہے کہ وہ EOBI مطلب تھا پینشن وہ کٹتی تھی, میں پوچھا اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھا کہ مجھے کوئی پیسے پوسے ریٹائرمنٹ پہ ملنے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کے بڑوں کو نہیں ملے جو آپ کے سینئر ایڈیٹر تھے, آپ کو کہاں سے کون ملنے ہوتے ہیں؟ اچھا EOBI کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی میری کٹوتی ہوتی تھی کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ آپ کو پینشن ملے گی 10,000 روپیہ مہینہ. ویسے وہ اس دفعہ مجھے پتا چلا ہے یہ بھی حکومت دے رہی ہے, نہیں حکومت دے رہی ہے, لیکن یہ 15,000 اخباروں ہو کے چکی ہے, ٹی وی 15,000 چینلز کے مالکان نہیں دے رہے, ان کو دینا چاہیے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے پوزیٹیو کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر انہوں نے صحافیوں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے, جیسا کہ میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں جتنا صحافیوں کے لیے درد ہے, وہ خود پریکٹیکل بڑے کلوز رہے ہیں. جب وہ میاں نواز شریف صاحب کے آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بہت سوشل میڈیا میں کام کیا, وہ صحافیوں کا درد بھی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے انفارمیشن منسٹر صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ان کی پینشن, ان کو مستقل ملازمت یا ان کا جو میڈیکل وغیرہ ہے, اگر یہ اشتہاروں کے ساتھ یہ شرائط میں رکھ دیں تو ساری عمر صحافی برادری سرور کرے گی. پاس ہوا ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ آپ جرنلسٹوں کو پراپرلی اکوپ کیے بغیر فیلڈ میں نہیں بھیجیں گے, ٹھیک ہے. اور میں بائی دا وے یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا کے اس میں کافی حد تک ہمارے ٹی وی چینلز نے کام کیا, وہ بلٹ پروف جیکٹ, ہیلمٹ, وہ مطلب وہ سیفٹی کی معیار وہ پورے کر رہے ہیں. جرنلسٹ کیجویلٹیز کے حوالے سے ہم ٹاپ 3 ممالک میں آتے ہیں دنیا میں, جہاں سے جرنلسٹوں کی جان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے ان میں ٹاپ 3 میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. ایک تو ہمارا آج کے دن کے حوالے سے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جی وہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل آپ نے پاس کیا تھا اس کے تحت جتنے بھی چیزیں طے کی گئی تھیں اس پہ عمل درآمد کروائیں. اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جرنلسٹوں کو پینشن کی عدم دستیابی, ویسے تسی تے میں دونوں ہی پینشن تے جانا لے ان قریب, تو لہذا ہماری طرف سے تو زیادہ زوردار دوسرا ویج ایوارڈ بھی دیکھو نا, وہ کدھر ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے. ویج ایوارڈ پر عمل درآمد نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ادارے میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں, اور اب وہ مطلب پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے مین عہدیدار ہیں سارے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, سب کو پتا ہے کون کس عہدے پر آگے ہے. اب ان کو چاہیے کھلے دل سے, دیکھیں آپ نے ساری دولت ساتھ نہیں لے جانی, کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی, وہاں قبرستان میں ATM کی مشین بھی نہیں لگی تھی. خدا کے لیے جو آپ نے کمایا ہے, جو اب حکومت سے اتنے بڑے اشتہارات کی مد میں لے رہے ہیں, ورکروں کے لیے بھی کچھ کر دیں, ورکر آپ کو دعائیں دیں. کم از کم جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے. اور میرا مطلب ہے کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے. ہونی چاہیے 80 لاکھ روپے والا اشتہار کا ریٹ جو ہے وہ 4 لاکھ ہو چکا ہے. اخبار جو ہے وہ پہلے 1 لاکھ چھپتا تھا, اب 5,000 چھپتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود اشتہارات کی مقدار بھی بڑھ چکی ہے, اور 4 سال 6 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی. اور جس ادارے میں ایک معصوم ادارے میں, ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا, اس معصوم ادارے میں 20% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. لاہور پریس کلب بڑا کریڈٹ لے رہا ہے. یار جن میں اضافہ نہیں ہوا اس کے لیے بھی تو مطالبہ کرو. بالکل صحیح بات, اور کرنے چاہیے. ارشد انصاری صاحب جیسے لاہور پریس کلب میں صدر ہیں, باقی ہمارے جو ڈویژنل اور پروونشنل ہیڈ کوارٹرز کے پریس کلب کے صدور ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ مل کر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ مل کے ایک ایسا خوبصورت کام کریں. صحافیوں کی مستقل ملازمت, ان کی طبی سہولتوں کی حوالے سے ان کے تحفظ ہونا چاہیے. ریٹائرڈ ہو جائیں تو یار انہیں کچھ دے دیں. یہ نہ ہو کہ اداکاروں کی طرح جنگ لڑی ہے امین حفیظ نے, بہت اچھی جنگ لڑی ہے. یہ نہ ہو کہ اداکاروں کی طرح پھر ہم بھی حکومت سے درخواست کر رہے ہوں بڈھے ویلے, یار 20-25 ہزار روپے مہینہ لا دیو. امین حفیظ, ہمیں جو ہے نا بھارت کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ وہ بڑے عجیب تحفے ہمیں بھیج رہی ہیں. اس کی مشرقی ہوائیں 3 دن سے جو ہے نا وہ لاہور کو اور
पूरे पाकिस्तान की फिजा को बहुत आलूदा किए हुए हैं। मैं वो तो जो अब अपनी भारत का नाम लेता हूं ना, फसलों की जो बाकियात जला रहे हैं शमाइला, और वो जो हवाएं आ रही हैं, शमाइला वो मेरी slow- बात सुने, जी, अब मैं भारत का नाम लेता हूँ ना तो मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है। आना शुरू हो जाता है। अब मेरा बेटा मुझे कहता है कि आज मैं जब खांस रहा था ना, कहता था अभी आपको खांसी नहीं आ रही थी, क्यों आ रही? मैं क्या, मैंने भी अखबार पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ था कि जो उधर से हवाएं आ भारत रही से हैं, मशरकी यूं हवाएं हवाएं इधर आई हैं तो 1064 एयर इंडेक्स हो गया। बिल्कुल यार, 1000 खुदा क्रॉस के कर लिए- गया। खुदा के लिए पानी तो आपने हमारा ले लिया, दरिया हमारे खुशक हो गए, दरियाओं में अब क्रिकेट हो रही है यार, फजा में तो हमें सांस लेने सांस दें। लेने दें यार। वैसे भी 10, 26वीं 10, आईनी तरमीम में मैं हमारा correction कर बुनियादी दूं, मैं हक correction- है। अमीन हफीज साहब, मैं करेक्शन कर दूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना 1067 हो चुका है। ओए होए होए, हाँ जी, ओए हाय हाय हाय, आए हाय नहीं, ओए हाय हाय ओए हाय। हुए। भारतीय पंजाब के वजीर साहब आपसे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हाँ। पाकिस्तान के हैदर पंजाब के बुखार साथ। वज़ीर आला, वज़ीर आला, नहीं, हमारी मैं जो वो वज़ीर मेरी आला बात है, सुन रहे हैं, जी तो जी हम जी, उनसे कह रहे हैं नहीं, कि जरा थोड़ा सा रज़ी थोड़ा दादा, रखें। हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला हैं वो कह रही हैं जी पहले सियासत नहीं इंसानियत होनी चाहिए। वो खत लिखने का सोच रही हैं कि उनको हम एक खत लिखते हैं हाँ। पंजाब के जो उनके वज़ीर आला लेकिन हैं। भारत के जो हमारे जो 3 अजला उन्होंने छीने थे 1947 में, उसके भी तो 3 सूबे बना दिए हुए हैं ना उन्होंने। सही। तो अब 3 सूबों को लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे फसलों की बाकियात मत जलाइए, क्योंकि हवा का रुख इधर को उनकी होता है। मतलब उनकी आवाम पे भी तो इफेक्ट हो रहे होंगे। और उनकी आवाम पे इफेक्ट इसलिए नहीं है अच्छा, कि नहीं हवा है? इधर को आ जाती है ना। और सही भी कह कई रहे दफा देखा सही कह रहे कि ये पीटीआई वाले किस PTI तरह वालों ने ज़मान अपने पार्क दौर में में- किस तरह पुलिस के ऊपर नहीं, चढ़ते नहीं। थे, किस इससे तरह ज़्यादा। वो बम जो पेट्रोल बम फेंकते थे, किस तरह सरकार की जो पुलिस की गाड़ियों को वो आग लगाते थे। यार नहीं करना चाहिए ऐसा। यार वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उनकी मतलब कि उनको जो ऊपर जो फूल बिछाए जा रहे हैं या उनकी बलाएं जो ली जा रही हैं, सरकारी मुलाजम यार- जो डी चौक में भेजे थे, ये पाकिस्तान है, ये सबका है। ये सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं। आज देखें जिस तरह मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ सियासी जमातों का पार्टियों एक को साथ लेके चल रही खूबसूरत है। गुलदस्ता बना हुआ है, तो पीटीआई की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि वो भी वसी तर मुल्की मफाद में इस गुलदस्ते का हिस्सा बने, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम में सोच वो तो भी रहे हैं यार। आगे आ आप जाए। कैसे आदमी हैं? सोच तो रहे हैं। कल सोच- बानी अभी पीटीआई आपने- बोले हैं किसी के खिलाफ कोई बात? नहीं, इसी अभी इसीलिए आपने तो वो खुद ही डील तो डील बोला की है, बातें लोग अभी करना आपने- शुरू हो बोले गए। किसी अब उन्होंने कल जो मीडिया के लोग उनको मिले हैं उधर, समझ जेल गए ना, में। जो समझ तारीख गए, थी, समझ गए, बिल्कुल, समात हो बिल्कुल, रही थी, बिल्कुल, तो अडियाला। उनसे जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे वो आपने जो सवाल अभी पूछा था बच्चे गैर सियासी तो नहीं हो गए? पीटीआई वाले डील की बातें कर रहे हैं, ऊपर से वो माशाल्लाह ऊपर से बुशरा बीबी की जमानत भी हो गई। हाँ, यहाँ पे तो बूढ़े भी गैर सियासी लग रहे हैं। नहीं, बुढ़ापे में फिर बच्चा हो जाता ये है सारी चीजें ना वो वाले कही जा रहे हैं कि डील शील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कहा है जो कुछ होगा कायदे कानून आइन के तहत अदालतों के जरिए होगा, किसी को अंडर द टेबल, समझ गया ना, हाँ। नहीं होगा। अब वो दौर नहीं है, वैसे अभी आपने टेबल कहा तो है कि मैंने जब परसों नालायक हो रखा। तो फिर नकल तो करनी है, दाएं बाएं तो देखना है, वो करते हैं। फिर वो सोचे कहाँ से? इनको चाहिए ना कि वो तैयारी करके जाएं, किसी एकेडमी में पढ़ें। अगर खुद नहीं पढ़े, टीचर का लेक्चर नहीं सुना, तो फिर पार्ट टाइम किसी एकेडमी में चले जाएं। आपको पता ना वो एकेडमी कौन सी एकेडमी रेफर करें ना। उस एकेडमी में जाएं, कुछ सीख आएं, कुछ 2-4 सवालों के जवाब दे दें, कुछ 33% पास मार्किंग ही ले नहीं, लें। एकेडमी नहीं। में गए थे, एकेडमी में गए नहीं, थे, वहाँ पे फिर- बम बनाने का तरीका सीखा Oh my था, वहाँ पे पुलिस को एंगेज करने का तरीका सीखा था, बोतल बम बनाने का तरीका सीखा था। वैसे ये बड़ी जिसके नतीजे में 9 मई हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। जिसके नतीजे में 9 मई हो मैं गया, आपको अर्ज करूं, और फिर वो मानते भी मैं नहीं। आपको अर्ज करूं, ये जो अच्छा मजे की बात ये है कि पीटीआई के 2-3 वकला ने शोर मचाया कि हमारे घर में बम फेंके गए, ठीक है, बोतल बम फेंके गए। हाँ, हाँ। अब आपने भी रिपोर्टिंग की हुई है, मैंने भी की हुई है, हमने पुलिस के हाँ रज़ी दादा, बोतल बम हमारे देखे प्रोग्राम हुए का वक्त खत्म हो बस रहा है। आखिरी जी, आखिरी जी, जी, 10 जी, सेकंड जी। बोतल देखे हुए। जो इन्होंने अपने घर में ड्रामा किया ना, वो पानी की जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं उनके बम थे, जिन्होंने कभी भी नहीं फटना था। अच्छा। और जो इन्होंने एक्चुअली पुलिस पे फेंके हैं वो शीशे की दूसरे शीशे बोतलों की के बॉटल थे, वाले। जिन्होंने गिरते ही फट जाना था। तो आप उनकी ड्रामेबाजी देख के ट्रेनिंग पूरी ली हुई है उन्होंने यार, एकेडमी क्वालिफाइड है यार। बस थैंक यू वेरी मच रज़ी दादा, आपका भी, अमीन हफीज़ आपका भी। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। शुमाइला चौधरी, रिजवान रज़ी और अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए।
اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, فیس بک, انسٹا, ہمارے ہر جگہ اکاؤنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.